Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss the some simplest MCQ. Okay, so that you all maybe know, but still we will discuss here. So approximately total 60 MCQ I will cover in this class. Okay, so let's start the today's class. So that is nothing but the first MCQ. The hormone is not produced by placenta. Okay, which hormone is not produced by placenta? So we have given the four option: testosterone, estrogen, progesterone, and HCG. Okay, human chorionic gonadotropin. So out of these four option, the correct option will be testosterone. Okay, so I have already told to you the MCQ which I will cover here. Okay, that you all maybe know. Okay, so simplest MCQ I will deal here. Okay, the second MCQ that nothing but the fertilization of ovum. Okay, that nothing but the fusion of male gamete, that is nothing but sperm, and the female gamete ovum. Okay, the fertilization of ovum in female take place in the vagina, oviduct, uterus, and cervix. Okay, the oviduct is also called as fallopian tube is also called as oviduct. Okay, and in that particular fallopian tube, ampulla of the fallopian tube. Okay, वहाँ पे पर्टिकुलर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, द फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का, यानी कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, विद द ओवम, स्पर्म मीट्स विद द ओवम, यानी कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे, ओविडक्ट में. ओके, ओविडक्ट के किस पार्ट में, फैलोपियन के किस पार्ट में, एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. ओके, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द फीमेल टेक प्लेस इन द ओविडक्ट. ओके, the third MCQ that nothing but specialist of the heart is called as. Okay, that is nothing but cardiologist. Okay, neurologist आप जानते हो कि जो भी नर्वस सिस्टम्स के जो वहाँ पे फिजिशियंस होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट. नेफ्रोलॉजिस्ट इज रिलेटेड विद द योर किडनी. ओके, किडनी प्रॉब्लम. एंड गायनेकोलॉजिस्ट दैट नथिंग बट विच इज़ रिलेटेड विद द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन. ओके, विच इज़ नथिंग बट who hasn't conceived till now. ओके, जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है. ओके, वो पर्टिकुलरली जो उनसे डील करते हैं, उस पर्टिकुलर वुमेन से जो डील करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट MCQ दैट नथिंग बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाय. ओके, वी ऑल नो दैट इन आवर human system. Okay, artery carry the our oxygenated blood. Okay, and vein carry the deoxygenated blood. Okay, but during the development of the fetus, okay, in the particular uterus of the female, okay, वहाँ पे क्या होता है कि उल्टा होता है. Okay, just opposite होता है. Oxygenated blood is carried by our vein and deoxygenated blood carried by our umbilical artery. Okay, तो oxygenated blood is carried to the fetus by ultimately umbilical vein. ओके, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए यहाँ पे अभी मैंने डी लिखा. ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाय अम्बिलिकल आर्टरी. ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाय अम्बिलिकल वेन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द फीटस बाय अम्बिलिकल आर्टरी. ओके, जस्ट रिवर्स होता है जो हम नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन में हम देखते हैं. ओके, द नेक्स्ट MCQ दैट नथिंग बट दिस मेन इज सफरिंग फ्रॉम. ओके, यहाँ पे बल्जिंग हुआ है पर्टिकुलरली, यानी कि मेल, यहाँ पे मैन यहाँ पे रिफ़र किया गया है. और मैन के फीचर, अगर मैन को अगर फीमेल के फीचर या कैरेक्टर विजिबली होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज द गायनेकोमास्टिया. ओके, यहाँ पे हर्निया नहीं हुआ है. हर्निया मतलब कोई भी लिम्फ नोड का इलांजमेंट जहाँ पे होता है, इंगुलन हर्निया. ओके, इट मे बी द इंगुलन हर्निया, इट मे बी द देयर नंबर ऑफ हर्निया, देयर नंबर ऑफ टाइप ऑफ हर्निया. ओके, तो हर्निया ये तो नहीं है, डिस्ट्रॉफी भी नहीं है. ओके, दिस इज द गायनेकोमास्टिया. ओके, द फीचर ऑफ female develop in the male, that is called as gynecomastia. And dyspepsia is a condition where the thirstiness is increases. Okay, so out of these four option, the correct option will be gynecomastia, where the man develop the female character. Okay, the body temperature is regulated by, okay, body temperature is regulated by our hypothalamus. Okay, medulla oblongata control our respiratory systems. Okay, pituitary gland control the nerve, control the all kind of hormonal systems. Okay, and cerebrum control our all the functions of the particular body. Okay, so ultimately hypothalamus regulate the body temperature. Okay, hypothalamus regulate our the particularly thirstiness. Okay, the hungriness, anorexia condition. Okay, so all
out of that particular option, okay, body temperature is regulated or controlled by our hypothalamus during the fever. ओके वहाँ पे होता क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है. देयर इज़ अ एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर. इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ ड्यू टू द एनी स्टिमुलाई विच इज़ given to the hypothalamus, and ultimately hypothalamus elevate the particular body temperature to kill that particular foreign invader or nothing but infective part. Okay, so ultimately body temperature is regulated by our hypothalamus. Okay, then largest part of the human brain is cerebellum. The first largest part of the brain is nothing but cerebellum, and second largest part of the brain is nothing but cerebellum. Okay, the largest part of the human brain is cerebrum, and second largest part of the human brain is nothing but cerebellum. So out of these four options, cerebrum, cerebellum, midbrain or medulla oblongata, the correct option will be cerebrum. Okay, I already told to you the MCQ which I will deal with with you in this class, that you all maybe know. Okay, so just listen and you can skip the particular MCQ. Okay, तो आप वीडियो को बढ़ाकर वहाँ पे देख सकते हो. ओके, अदरवाइज आप देखते जाइए एक एक 1 by 1 MCQ. तो पर्टिकुलरली नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द हार्ट अटैक. ओके, हार्ट अटैक इनमें से पर्टिकुलरली कौन सा कॉज करेगा? ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल. ओके, द करेक्ट ऑप्शन विल बी कोलेस्ट्रॉल. ओके, कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज हार्ट अटैक इन फ्यूचर. ओके, तो अल्टीमेटली वी हैव अ 2 kind of cholesterol, HDL and LDL. Okay, high density lipoprotein and low density lipoprotein. Okay, out of that, if the person has LDL, okay, LDL that nothing but लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन अगर ज़्यादा होता है, ओके, एज यूजुअल अगर ज़्यादा होता है तो दे कैन कॉज वहाँ पे हार्ट अटैक. ओके, तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट और कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज आवर हार्ट अटैक प्रॉब्लम. ओके, ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया विल कॉज द नेफ्रोजेनिक प्रॉब्लम, दैट नथिंग बट किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम. ओके, ब्लड प्रोटीन दैट विल कॉज द लीवर प्रॉब्लम. ओके, ब्लड शुगर अल्टीमेटली अगेन पैंक्रियास का प्रॉब्लम है. ओके, यानी कि वहाँ पे पूरे ये होल बॉडी की प्रॉब्लम रहेगी ब्लड शुगर अगर वहाँ पे बढ़ता है. लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो इट मोस्टली अफेक्ट द हार्ट रीजन एंड अल्टीमेटली इट मे लीड और इट मे कॉज हार्ट अटैक इन फ्यूचर. ओके, तो अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन विल बी कोलेस्ट्रॉल. देन मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक. ओके, what is particularly option, correct option? The correct option will be analgesic. Okay, analgesic drug which reduces the pain. Okay, and morphine is pain reducer. Okay, as you all know that we are obtaining the plant source, we are obtaining the opium from plant source, or ultimately opium which is nothing but a plant source. Okay, and by this particular opium we are nothing but we creates the morphine, heroin, okay, codeine, this kind of product which ultimately suppresses our brain activity. Okay, and ultimately produces the excitatory habit or excitatory condition of the body. Okay, and ultimately वहाँ पे भी क्या होता है कि जो पेन रहता है वो भी वहाँ पे सबसाइड होता है. तो मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक. ओके, द लंग्स डिवाइडेड हाउ मेनी चैम्बर्स? द लंग्स डिवाइडेड इज नथिंग बट 5 chamber. Okay, the left lung is divided into the 2 chamber and the right lung is divided into the 3 chamber. Okay, so ultimately lungs divided in the 5 chamber. Insulin injection is given by which kind of route of administration? Okay, we know that IV, subcutaneous, intramuscular or intramural. Okay, so these all may consider in the parenteral route of administration. Okay, but out of that insulin injection is given by which kind of parenteral route of administration? Okay, so answer will be subcutaneous. The next MCQ is nothing but what disease causes yellowing of eyes, skin and urine? Okay, तो ये इसका आंसर देने की तो कोई बात ही नहीं, सिंपल सा आंसर विल बी जॉन्डिस. तो व्हाट डिसीज कॉजेज येलोइनेस ऑफ आईज, स्किन एंड यूरिन? जॉन्डिस में क्या होता है? देर इज़ एग्जैगरेटेड प्रोडक्शन ऑफ योर बिलिरुबिन. ओके, और अल्टीमेटली होता है क्या है वहाँ पे कि बिलिरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ जाती है और वहाँ पे
अल्टीमेटली वो पूरे पर्टिकुलर बिलीरुबिन जब बिलीरुबिन, व्हाट इज द बिलीरुबिन? बिलीरुबिन इज नथिंग बट इट इज अ येलो कलर पिगमेंट. Okay, and whenever there is increasement of that particular yellow color pigment, the deposition of that particular bilirubin takes place in the sclera part of the eye. Deposition of that particular yellow pigment is takes place over inside the skin. Okay, and ultimately the increased part of that particular bilirubin may found in the urine. Okay, so that's why the we all know that urine is in yellow color, but still after that particular yellow color, okay, the ultimately the highest degree of yellowness is found in the particular urine, okay, by the presence of or by due to the ultimately exaggerated or elevated condition of the bilirubin. Okay, so that's why jaundice is a condition where the yellowing of the eyes in and urine may be found. Okay, the ultimately the identify the bone shown in the below image. Okay, what is the particular image? So this is a skull. Okay, so this is a skull part of the particular image, and out of that we have to find which is color. So color portion is nothing but mandible. The average length of the menstrual cycle is 28 day. Okay, the average length of the menstrual cycle is 28 day. There are many women, they may feel or they may have a particular less than there are rare case there whose menstrual cycle is less than 28 day. Otherwise their exception are there. Menstrual cycle is approximately, or normal menstrual cycle day is 28 day, but there are number of women they have a more than 28 day. Okay, they have a more than 28 days particularly menstrual cycle. Okay, but there may be there low chance to have a particular less than 28 day. Okay, the rare case may you may be found or you may be seen. Okay, the average length of the menstrual cycle is 28 day. The dengue fever, the symptoms of the dengue fever, the symptoms of the dengue fever is fever, the retroorbital pain. Okay, you may relate with the headache. Okay, then ultimately nausea and vomiting, myalgia that nothing but pain in the muscles. Okay, pain in the muscles of the whole body. Then ultimately maculopapular rashes over all parts of the body. Okay, there are rashes, there is a papules may develop over the skin due to the particular, it may consider the symptom of the dengue. Okay, the platelet count goes on decreasing, so that is a particularly symptoms may found in the particular, there is a particular sign and symptoms may found in the dengue. Okay, then scattered petechiae, again that is a skin rashes, skin irritation problem. Bony pain, there is a maybe joints pain, okay, associated with the dengue. So these are the symptoms which you may found ultimately in dengue condition. There is an important sign that nothing but by observing or by the CBC we can understand the platelet count. The decrease the platelet count is nothing but the dengue condition. Okay, so ultimately here a chart is provided or given to me, I have given to you, that nothing but lungs में डिसीज़ कौन सा डिसीज़ है और कौन से इन्फेक्टेड पार्ट ज़्यादा होते हैं. तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है. गॉइटर में थायराइड ग्लैंड होता है. कैटरैक्ट में आइस. रूमेटिज्म में दैट नथिंग बट जॉइंट प्रॉब्लम में वहाँ पे होता है. ओके, रूमेटिज्म दैट नथिंग बट जो रूमेटॉइड यानी जॉइंट्स के जो डिसीज़ को वहाँ पे हील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं. ओके, तो जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम इज healed or cured by our rheumatologist. Okay, that's why rheumatism which is come under the disease. तो इन्फेक्टेड पार्ट वहाँ पे क्या रहता है, जॉइंट्स रहता है. रिकेट्स में अगेन बोन रहता है, मोस्टली ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोपोरोसिस. ओके, वहाँ पे जो रिकेट्स जो मोस्टली हमारे चिल्ड्रंस में ज़्यादा पाए जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. ओके, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में पोरोसिस, ओस्टियो रिकेट्स और ओस्टियो मेलेसिया वहाँ पे हो सकते हैं. जॉन्टिस के प्रॉब्लम में लीवर वहाँ पे मोस्टली अफेक्टेड होता है. डिप्थीरिया में थ्रोट. डायबिटीज़ में पैंक्रियास, ड्यू टू पैंक्रियास इन्फेक्टेड वहाँ पे डायबिटीज़
कॉज होता है, ओके, ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ योर इंसुलिन, ओके, अल्टीमेटली डायबिटीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। देन इंटेस्टाइन की वजह से वहाँ पे टाइफाइड, और यू कैन वहाँ पे बोल सकते हो कि जो अल्टीमेटली टाइफाइड जो होता है वो इंटेस्टाइन ज़्यादा, टाइफाइड में इन्फेक्टेड पार्ट हमारा कौन सा रहता है, ज़्यादा इंटेस्टाइन रहता है। क्योंकि टाइफाइड क्यों होता है, कैसे होता है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड अल्टीमेटली इंटेस्टाइन इज मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ड्यू टू द अंडर द टाइफाइड, ओके। द सल्मोनेला टाइफाइड कॉसेज द टाइफाइड। Then pyorrhea, then ringworm, okay, ringworm, in the ringworm condition the skin is most affected part. In malaria there is the liver and spleen which is most affected, okay. So ultimately the disease and the infected part is provided, okay, I have given to you. You can take screenshot this particular page or you can skip. The next is nothing but it is a medical device used to look into the ears, okay. So that is nothing but otoscope. It is device to look into the ears. Stethoscope, by stethoscope we are hearing the heart sound, we are hearing the lung sound, okay. Microscope for the particularly observing the bacteria, fungi or virus, okay. And ultimately in telescope you all know that, okay. So answer will be otoscope. Which intramuscular injection method, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में कितने एंगल की डिग्री हम बनाते हैं विद द आवर सिरिंज। तो सिरिंज एंड अपना जो लेवल होगा, ओके, जो हमारा वीनस यानी कि जो ब्लड की जो कैपिलरी होगी उनके बीच में जो वहाँ पे एंगल बनता है, द एंगल मेड बिटवीन द पर्टिकुलरली साइट वेयर वी आर इंजेक्टिंग, ओके, एंड द सिरिंज, द एंगल विल बी इन IM यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में द 90 डिग्री एंगल। The 45 degree is covered by or come under by subcutaneous injection. Then ultimately 60 degree or 95 degree there are rare. We are calculating with the 60 degree 95. The 90 degree is intramuscular. Subcutaneous is 45 degree and IV यानी कि इंट्रावीनस एडमिट से जो होता है हमारा वो 25 डिग्री होता है। एंड लास्टली जो इंट्राडर्मल होता है वहाँ पे 10 to 15 डिग्री का हम एंगल बनाकर विद द स्किन एंड सिरिंज, ओके, वहाँ पे हम 10 to 15 डिग्री का एंगल बनाकर वहाँ पे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन पुटअप करते हैं इनसाइड द स्किन पार्ट। देन वाइडल टेस्ट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विडाल भी उसको बोलते हैं, वाइडल बोलते हैं, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस इट। तो विडाल टेस्ट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। The nails contain which protein? Nails contain the keratin protein. You all know that thrombin protein is used for our particularly platelet aggregation, or you can say the in the clotting process. Myosin, actin and myosin is a protein which is particularly found in the particular muscle part which is required for the muscle contraction. But keratin and fibrin, okay, fibrin protein is also required for our hairs, okay, but keratin protein is required for our nails, okay. Growth of the facial hair in female is known as growth of the facial hair in the female, okay, the characters of the male if found in the female, okay, that is nothing but hirsutism. So hirsutism is nothing but the growth of the facial hair, the development of the beard, the development of the mustaches in female's face. So that is called as a hirsutism, okay. The Coulter count is used for the obtaining the CBC, okay, complete blood count. We are using or we are obtaining the CBC report by Coulter counter. It is a medical instrument which is used for the CBC, okay. The exclusive breastfeeding is recommended for 6 month, okay, 6 month. हाँ, ये बात ठीक है कि अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग जो हम बेबी रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीड करते हैं, बट आउट ऑफ दैट 6 मंथ जो रहता है वो एक्सक्लूसिव रहता है। वाई एक्सक्लूसिव? इन दिस 6 मंथ, इनिशियली 6 मंथ जो हमारा रहता है आफ्टर द एक्सपल्जन, आफ्टर द डिलीवरी, जो बेबी वहाँ पे रहते हैं उनका जो ब्रेस्ट फीड होता है वो टिल 6 मंथ ओनली दे डिपेंडेंट ऑन देयर
milk, okay, only depend on their breast milk. But after this 6 months, okay, they start to eating some kind of rice, okay, they start to eating some kind of vegetables product, okay. तो द एक्सक्लूसिव दैट नथिंग बट ओनली, वहाँ पे जो ओनली का जो कंडीशन आता है वो सिर्फ 6 मंथ तक रहता है, और दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रेस्ट मिल्क, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर द 6 मंथ, ओके, इनिशियली 6 मंथ. The name of the position, give the name of the position. It is the lithotomy position where we are तो अल्टीमेटली लिथोटोमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में वहाँ पे कोई भी वहाँ पे सेमी फ्लैक्स लेग के सेमी फ्लैक्स का कंडीशन नहीं रहता है. प्रोन पोजीशन में एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है, ओके. और अल्टीमेटली डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशन, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज वगैरह होते हैं. तो अल्टीमेटली लिथोटोमी एक पोजीशन होता है जहाँ पे हम सेमी फ्लैक्स लेग को क्या करते हैं, हैंग ओवर करते हैं, हैंग आउट करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ सम पर्टिकुलर हैंगर. एंड अल्टीमेटली डॉर्सल रिकमेंड और लिथोटोमी, ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज वगैरह हो सकते हो आप, तो आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. ये मे भी इसका ऑप्शन डॉर्सल रिकमेंड हो सकता है, क्योंकि लिथोटोमी कंडीशन में क्या होता है पता है आपको. लिथोटोमी में कंडीशन में मैंने आपको बताया कि सेमी फ्लेक्स उनका लेग रहता है, और वो लेग को क्या करते हैं, हैंग आउट करते हैं. हैंग आउट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे वजाइना या फिर वहाँ पे इंट्रा वजाइनली कुछ वहाँ पे पर्टिकुलरली कोई स्कोपी वगैरह से उनको देखना रहता है, ओके. पैप स्मीयर टेस्ट में वहाँ पे सर्विक्स वगैरह की एग्जामिनेशन वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, उनके सेमी फ्लेक्स लेग को एक ऐसे ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट हैंगर के थ्रू क्या करते हैं, उसको वहाँ पे हैंग आउट करते हैं, ओके. तो देर मे बी द सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बट यू कैन करेक्ट द लिथोटोमी. So name of the instrument, you have to find out the name of the instrument. This is the Ryle's tube, okay, for the feeding purpose, for the gastric washing purpose. We are using the Ryle's tube. We are using the nasogastric tube, that is also called as the nasogastric tube or Ryle's tube, okay. So this is a Ryle's tube. Graveyard of RBC is spleen, okay. The spleen is the side where the RBC get distracted, and ultimately RBC it convert into the iron part, ultimately RBC convert to the hemoglobin, and ultimately RBC convert into the bilirubin and biliverdin extra part, okay. So dissection of RBC, that is called as the graveyard of RBC, is spleen, okay. Then Vidal test is employed for detecting, again मैंने आपको बताया, टाइफाइड. Omeprazole is a drug that used to treat ulcer, okay. In ulcer condition we are using the omeprazole drug for treating the ulcer. What is common site for recording pulse rate? So what is the common site for recording the pulse rate is nothing but radial artery, okay. There are number of artery, they are running superficially along with our skin, okay, skin part, superficially skin part. But the most common site, there are number of site where we can understand or where we can record the pulse rate, but most common site is nothing but our radial artery, okay, radial artery. Out of that, if we are calculating, if we want to know the which common site or which are site where we can pulsate or where we can obtain our pulse, that I think what we have a carotid artery pulsation, we have a femoral artery pulsation, we have a popliteal artery pulsation, we have a dorsal pedis artery pulsation, okay. So there are number of artery, there are number of place where we can pulsate or where we can obtain our pulse rate, but most common site is, out of that particular most common site is our radial artery, okay. The next is nothing but which vitamin is good for bone, okay. The bone, which vitamin is good for bone? Vitamin A is necessary for your eyes mostly. Vitamin K is necessary for your blood clotting process, is necessary for your blood, okay. Vitamin C is necessary for your bone growth, hair growth, okay, your skin का part. But ultimately vitamin D is necessary for bone, okay. So vitamin D is necessary or essential for your bone tissues. Why? क्योंकि विटामिन डी के वजह से ही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे अल्टीमेटली क्योंकि विटामिन डी की वजह से वहाँ पे क्या होता है पता है आपको, कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन होता है, और अल्टीमेटली उस पर्टिकुलरली वहाँ पे
जो पर्टिकुलर जो हमारे बोन होते हैं ना, उन पर्टिकुलर कन्वर्ट मटेरियल से अपने ग्रोथ वगैरह करते हैं। तो पर्टिकुलरली विटामिन डी इज एसेंशियल और नेसेसरी फॉर द बोनी ग्रोथ। Furosemide drug are used for the furosemide drug of choice for our diuresis. Okay, whenever the person complain with low micturition problem, the micturition is the nothing but जो उनका जो यूरिन वगैरह जो बनता है, if they feel low amount of urine, okay, they have to go 1 or 2 time in the whole day for urination. So the doctor may prescribe the diuresis drug for the increasement of that particular urine. Okay, so that is nothing but furosemide is the drug of choice for our diuresis. How many chromosome a human sperm cell has? The how many chromosome a human sperm cell has is nothing but 23, क्योंकि स्पर्म जो बनता है वो म्योसिस के डिवीजन के बाद बनता है। और अल्टीमेटली यू ऑल नो दैट इन माइटोसिस देयर इज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन और एसिड रहते हैं, बट ड्यूरिंग द म्योसिस देयर इज अ रिडक्शनल डिवीजन होता है वहाँ पे। और अल्टीमेटली वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ डिवाइडेड हो जाता है। तो स्पर्म हैज़ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन द बिलो इमेज। सो दैट इज नथिंग बट ट्यूनिफॉर्म। ओके, तो यूटेराइन साउंड सुनने के लिए हम फिटलस्कोप हम वहाँ पे लगाते हैं फिटस के ऊपर। टंग डिप्रेशर टॉन्सिलिस वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए हम करते हैं। और बोन फ्रैक्चर जो रॉड आता है वो हम फ्रैक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। बट ट्यूनिंग फॉर्म इज़ नथिंग बट हम वहाँ पे हियरिंग कैपेसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए रिन टेस्ट और बेवर टेस्ट करके एक वहाँ पे टेस्ट आता है विच इज़ कंडक्टेड बाय और यू कैन से दैट इज़ नथिंग बट कैरी आउट बाय आवर दिस ट्यूनिंग फॉर्म। ओके, द ट्यूनिंग फॉर्म इज़ ए ऑब्जेक्ट हियर इट इज़ अ shown. Okay, the diclofenac is used for the diclofenac sodium is used for our pain. Okay, diclofenac sodium, it is a ultimately nothing but a non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAIDs. Okay, तो non-steroidal anti-inflammatory drug जितने भी होते हैं वो पेन रिलीवर होते हैं, इन्फ्लेमेटरी को वहाँ पे वो ठीक करते हैं। तो डाइक्लोफिनॉक सोडियम ना, तो डाइक्लोफिनॉक सोडियम रेयरली शायद वो एनसैड्स रहते हैं, अदरवाइज यस डाइक्लोफिनॉक सोडियम वो क्या रहते हैं, एनसैड्स होते हैं। और जितने भी एनसैड्स होते हैं ना वो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और वहाँ पे वो उनका एक और एक्शन होता है एंटीपायरेटिक। ओके, तो ये 3 एक्शन शो करने वाले हमारे एनसैड्स के ड्रग होते हैं। और अल्टीमेटली डाइक्लोफिनॉक सोडियम जो अल्टीमेटली जो ड्रग होता है वो हमारा एनसैड होता है और पेन रिलीवर होता है। ये देखिए यहाँ पे जो इमेज आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 ब्लड के सैंपल्स लिए गए थे और उस 3 ब्लड के ड्रॉप में हमने 1 बाय 1 एक ब्लड के ड्रॉप में हमने एंटी ए डाला, एक ब्लड में हमने एंटी बी डाला और तीसरे में हमने एंटी डी डाला। अब ये एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी क्या है, ये एंटीबॉडी है जो हम पर्टिकुलरली ब्लड के ड्रॉप में हम ऊपर से डालते हैं। ओके, बाय ड्रॉप वाइज वी आर एडिंग द एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी रेस्पेक्टिवली इन दिस 3 पर्टिकुलरली blood drop. Okay, so after the mixing of this different blood crop, okay, by different applicator stick, okay, वहाँ पे होता है क्या कि after completion of some time वहाँ पे जो ब्लड ड्रॉप हमने डाला था ना वहाँ पे आरबीसी गया है, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा दे बाइंड विद द एंटीबॉडी विच वी आर पुटिंग, ओके, ओवर द ब्लड ड्रॉप, ओके, विच वी आर पुटिंग ओवर द ब्लड ड्रॉप। उनके अंदर हम जो हम पुट कर रहे हैं पर्टिकुलरली ब्लड के ड्रॉप के ऊपर वो क्या है, एंटीबॉडी है। तो ब्लड के पास जो एंटीजन होगा, आप जानते हो कि द आरबीसी सरफेस एज एंटीजन, ओके, तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी वहाँ पे रिएक्शन होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। और अल्टीमेटली इन्हीं की वजह से क्या होता है, क्लम्पिंग होता है। और वहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एग्लूटिनेशन वहाँ पे ऐसा कुछ समथिंग तो बनता है जिनकी वजह से क्या होता है वहाँ पे पर्टिकुलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे में वहाँ पे एंटीजन
है, ओके। एंटी ए अगर हमने डाला है तो वहाँ उस पर्टिकुलर बंदे में एंटीजन ए होगा, तभी वो एंटी ए से यानी कि एंटीबॉडी ए से वो वहाँ पे पर्टिकुलरली कॉन्जुगेट हो रहा है, एगुलेटेड हो रहा है, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो सैंपल दिया गया है ये ए बी पॉजिटिव का है, क्योंकि तीनों में एगुलेटेशन शो हो रहा है, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी के साथ, तीनों के साथ वहाँ पे एगुलेटेशन हो रहा है। तीनों में एंटीजन है, एंटीजन बी और एंटीजन डी उनके ब्लड सैंपल में पाया गया है, और अल्टीमेटली दे एगुलेटेड विद द एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी respectively, okay। So blood group will be this blood group or this blood sample will be our AB positive, okay। Then if we talking about next question is nothing but this injection is called as, so this injection is nothing but intravenous, okay, which we are putting inside the venous. emesis mean is nothing but omitting. So which one of the following is not a sex hormone? So progesterone, testosterone, androsterone. So which one of the following is not a sex hormone? So this is option will be cholecystokinin. It is not a sex hormone. Yellow color of urine due to the presence of the urochrome. Okay, so yellowing of your urine is nothing but it is due to the urochrome, okay। This is the below instrument. What is the below instrument? This is the Foley catheter, okay। The Foley catheter is used for the draining purpose of your urine, okay। ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है इनका। जब कभी किसी बंदे को रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है या फिर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम रहती है। इनकॉन्टिनेंस यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब ये होता है कि कोई बंदा अगर अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ओके। आप जानते हैं कि ब्लैडर का एक मसल होता है, डिट्रोसियस मसल होता है, ओके, विच कंट्रोल द मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर, ओके। अल्टीमेटली जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन बराबर तरीके से नहीं होता ना, होता है क्या उसकी वजह से कि यूरिन का जब एमिशन होना चाहिए, जब उसका वहाँ पे उसको निकलना चाहिए तब निकल नहीं पाता है, और होता है क्या कि वहाँ पे फ्लक्चुएट होते रहता है। दैट नथिंग बट पर्सन को निकालना है, यूरिन निकल नहीं रहा है लेकिन अपने आप वो निकलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। यानी कि द इजेक्शन और दैट नथिंग बट इवैक्यूएटिंग ऑफ योर ब्लैडर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, ओके। आप सेल्फ कंट्रोलेबल नहीं कर सकते अपने यूरिन को, वो अपने आप निकल रहा है, यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उनको हम बोलते हैं। रिटेंशन में क्या होता है कि पर्सन के अंदर ब्लैडर में भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ है, यूरिन है बट नॉट एबल टू इवैक्यूएट इट, ओके, बट वो उसको निकाल नहीं सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम फोलिक कैथेटर हम यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली ये क्या है, फोलिक कैथेटर होता है। इसका एक शिरा हम क्या करते हैं, अपने यूरिनरी ब्लैडर के साथ यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यूरिन कलेक्टिंग बैग जिन्हें हम बोलते हैं, यूरिन कलेक्टिंग बैग जिन्हें हम UCG बोलते हैं, ओके। यहाँ पे ये हार्मोन का नाम नहीं है जो आप प्लेसेंटा से जो सीक्रेट होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यहाँ पे जो रहता है ना यूरिन कलेक्टिंग बैग, ओके, SCG नहीं, सॉरी, UCG, यूरिन कलेक्टिंग बैग जो होता है ना, उसके साथ एक एंड हम ज्वाइंट करते हैं, और दूसरा एंड जो होता है ना, हम इस पर्टिकुलर बलून को फुगाने के लिए, बलून को स्वेल करने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये बलून अगर फूलेगा नहीं ना, होता है क्या इसकी वजह से कि फोलिक कैथेटर फिर से वो पर्टिकुलरली यूरेथ्रा से निकल जाएगा, ओके, यूरेथ्रा से वो निकल जाता है। तो टू फिक्सेस द पर्टिकुलर ट्यूब और टू फिक्सेस दिस पर्टिकुलर फोलिक कैथेटर वी हैव अ टू काइंड ऑफ ओपनिंग which the first opening fixes the attachment with the urine collecting bag, and next one is to swell our balloon, okay। So this is a Foley catheter, not IV cannula, not tracheostomy tube, not Ryle's tube, okay। तो which vitamin is essential for your blood clotting? तो blood clotting के लिए जो essential हमारा प्रोटीन होता है, सॉरी विटामिन होता है, it is nothing but विटामिन K, okay। So identify this. The diagram which is provided is here. What is this? It is a nothing but it is a spleen. Okay. Then what drug are safe to use during pregnancy? So that nothing but iron and folic acid. These are the safest drug which we can use during the pregnancy time. But out of that, tetracycline, atenolol, valproic acid,
okay, they can affect to our fetus, they can affect to their fetus. Okay, that's why uh, if we prescribing, if we want to give particular medication to any pregnant woman, so we have to take care of that particular thing कि वहाँ पे डेवलपमेंट एक मदर के साथ साथ डेवलपमेंट फिटस भी हो रहा है. तो वट एवर द फीमेल इट, वट एवर फीमेल विल कंज्यूम, it may affect to their fetus. So whenever you are trying or whenever you are prescribing anything, you should check out that particular thing, okay, properly manner, and after that you describe you prescribe to any medicine to any woman, okay, any pregnant woman. So ultimately the safest drug are used during the pregnancy is iron and folic acid. okay, ये भी क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो फीमेल होती है उनके वहाँ पे जो आयरन होता है ना, आयरन की डिमांड फिटस में ज़्यादा बढ़ जाती है. ओके, एंड दैट्स वाई आयरन के जो कंजप्शन होते हैं ना, आयरन के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, आयरन के जो भी सप्लीमेंट होते हैं, जितने भी सप्लीमेंट एक्स्ट्रा जो मदर लेती है उसका 55 to 60% वो फीटस कंज्यूम करता है. ओके, एंड दैट्स वाई आयरन एंड फोलिक एसिड को जो कंजप्शन है, फोलिक एसिड जो कि रिक्वायर है आरबीसी के मैचुरेशन के लिए, आरबीसी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए. ओके, तो दैट्स वाई इनका कंजप्शन, इनको वहाँ पे सप्लीमेंट दिया जाता है. व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलरली. सो दिस इज नथिंग बट द टिबोक्टॉमी. ओके, so tuberculosis is nothing but where we are cutting the fallopian tube. okay, for the, it is a permanent method for the our is nothing but जो हम इनिमेज करते हैं ना अपने जो फर्दर प्रेगनेंसी को, जो हम वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट या फिर फर्दर वहाँ पे कोई प्रेगनेंसी वगैरह वहाँ पे ना हो, तो हम वहाँ पे परमानेंट मेथड हम वहाँ पे फॉलो करते हैं. तो दिस इज नथिंग बट द टिबोक्टॉमी, जहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब को हम कट करते हैं और अल्टीमेटली इट लीड टू द नॉन प्रेगनेंसी. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अफेक्ट्स मोस्ट द ब्रेन. ओके, ब्रेन मोस्टली अफेक्ट्स, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अफेक्ट मोस्ट द, यानी कि जब वेनेवर हाइपोक्सिया कंडीशन अचीव होती है, वेनेवर एस्फिक्सिया कंडीशन अचीव होती है, होता है क्या वहाँ पे कि ब्रेन अल्टीमेटली वहाँ पे मोस्ट अफेक्टेड होता है, क्योंकि ब्रेन को वहाँ पे जल्दी से जल्दी ब्लड चाहिए. इसीलिए जो हमारे हार्ट के जो ब्रांचेस हैं ना, वो ब्रेन के हार्ट जो हमारा उसके जो ब्रांचेस हैं और ब्रेन में जो डिस्टेंस है बहुत ही कम डिस्टेंस है. ओके, तो ब्रेन इट इज़ अ साइट, इट इज़ अ ऑर्गन वेयर द रिचेस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ रिक्वायर, और इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन it mostly affect the brain. okay, which of this organ filter waste from the blood. You all know that the blood is filtered by our kidney. okay, तो most जो हमारा ऑर्गन है जो फिल्टर करता है हमारे वेस्ट को, दैट इज नथिंग बट किडनी. ओके, तो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और अल्टीमेटली उस फिल्टर पर्टिकुलर ब्लड को फिल्ट्रेट के दौरान जो फिल्ट्रेट हम किडनी में आता है, उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट में भी जो बॉडी के लिए चाहिए रहता है, जो एसेंशियली रहता है, वो भी ऑब्जॉर्ब होके जो रिमेन, जो लास्ट में जो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो बनता है ना, वो हम निकालते हैं. तो अल्टीमेटली ब्लड को फिल्टर करने का जो काम कर रहा था उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं. ओके, सॉरी, किडनी बोलते हैं. ओके, मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. ओके, पेरिस्टियम, ये सॉरी पेरिस्टियम अल्टीमेटली ये बोन की कवरिंग होती है. पेरिटोनियम ये पर्टिकुलरली हमारे एब्डोमिनल की कवरिंग होती है. और मेनिंजेसिस जो हमारी कवरिंग होती है वो हमारे पर्टिकुलरली ब्रेन की कवरिंग होती है, जहाँ पे जो 3 ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर जो होते हैं उनको कवर करके हमारे मेनिंजेस रखते हैं. ओके, तो मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. विच लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन. तो विजन के लिए कौन सा लोब रेस्पॉन्सिबल है हमारा, occipital lobe is responsible for our vision. Which blood group is called as universal donor. यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर. तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो हमारे होते हैं AB पॉजिटिव होते हैं और यूनिवर्सल डोनर जो हमारे होते हैं वो O निगेटिव होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है. और ये ब्लड हम O निगेटिव ब्लड हम किसी को भी दे सकते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी एंटीजन. ओके, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी एंटीजन वेन एवर इफ वी आर गिविंग O negative blood to any recipient,
ओके। और अल्टीमेटली वहाँ पे जब ये ब्लड जाता है तो कोई भी एंटीजन नहीं होने के वजह से कोई भी वहाँ पे एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता है, एंड दैट्स वाई देयर नो एग्लूटिनेशन टेक्स प्लेस, दैट्स वाई देयर नो destruction of RBC takes place, there is no hemolysis of RBC takes place, and that's why they call as a universal donor. Okay. Cholesterol is synthesized in liver. Okay, if you are a vegetarian, if you are not eating the non-veg, but still in your body will have a cholesterol. Okay, why? Because cholesterol is produced by our liver. The object is given to which patient? This is nothing but it is a salbutamol, that nothing but it is a steroidal inhalator, okay, which given to mostly to our asthmatic patient. EDTA is used for, EDTA we are using for the CBC, the complete blood count, okay. And ultimately lipid profile, it included in the CBC. Electrolyte, we are measuring the electrolyte balance by RFT, the renal function test. And blood sugar, this is particularly we are checking with the our glucose level, okay. So EDT is used for our CBC. Which organ is our voice box? So voice box is nothing but our larynx. A fluid part of the blood is called as, the fluid part of the blood is nothing but plasma, क्योंकि कार्पस जो हमारे कार्पल्सल्स हैं यानी सेल्स जो है वो हमारे एर्थोरोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी हमारे क्या रहे कार्पस्कल्स हैं यानी सेल्स हैं। और अल्टीमेटली जो फ्लूइड पार्ट है वो हमारा किससे फॉर्म होता है? प्लाज्मा से बना होता है। और अल्टीमेटली प्लाज्मा जो कि मोस्टली फॉर्म जो हुआ रहता है वो हमारा वाटर से बना हुआ रहता है, ओके। BCG वैक्सीन इज यूज अगेंस्ट, BCG वैक्सीन दैट नथिंग बट बैसिलस कामेट, कुछ समथिंग ऐसा उसका वहाँ पे कुछ इसका फुल फॉर्म रहता है, घुमलिन करके रहता है। तो BCG वैक्सीन इज यूज फॉर अवर अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, ओके। What is the lifespan of red blood cell? The lifespan of the red blood cell is 120 days. Ibuprofen is nothing but it is a anti-inflammatory, because ibuprofen is nothing but NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drug, and due to the NSAIDs drug, okay, ibuprofen is anti-inflammatory drug. Is nothing but they inhibit they maintain the inflammatory condition. That's why ibuprofen is our anti-inflammatory drug. Which one of the following antimicrobial drug is suitable for treatment of both tuberculosis and leprosy? So the correct option will be rifampicin. The rifampicin is the commonest drug which we are using for a treatment in the tuberculosis and leprosy, okay. Out of that, isoniazid, para-aminosalicylic acid and streptomycin. द रेयर चांस आइसोनियाजिड जो रहता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम करते हैं, पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक जो एसिड होता है हमारा वो हम लेप्रोसी में देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन वी आर यूजिंग इन द आवर ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी कहीं तो देते हैं, बट रिफाम्पिसिन जो हमारा रहता है ना अल्टीमेटली ये हम दोनों में यूज़ करते हैं। ये जो है हेल्थी आर्टरी और डिसीज आर्टरी आपको शो करने के लिए मैंने इसको पुटअप किया था ये स्लाइड में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है? प्लेक होता है, इसको मैं थोड़ा सा अपना रिमूव करता हूँ, ओके। ये क्या होता है? प्लेक की बिल्डअप होती है हमारे इंटरनली लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, प्लेक की डेवलपमेंट होती है। प्लेक मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल इंटरनली लेयर पे लेयर चढ़ाते चले जाता है, लेयर पे लेयर उसकी बढ़ती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं। तो डिसीज़ आर्टरी में और हेल्थी आर्टरी में क्या डिफरेंस है, जस्ट उसको शो करने के लिए ये पर्टिकुलरली इमेज को मैंने यहाँ पे आज के स्लाइड में पुटअप किया, ओके। सो दैट इज़ नथिंग बट फॉर आवर टुडेज क्लास। यहाँ पे हमने कुछ डिसीज़ कंडीशन को देखा, कुछ हमने ड्रग्स को इन द फॉर्म ऑफ MCQ देखा। हाँ, देयर में भी पॉसिबिलिटी जितने भी MCQ में आज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, दे ऑल मे बी नो, ओके। तो वो आपको पता हो सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी, वट एवर आई हैव, ओके। मैं आपको हमेशा सेंड करते रहता हूँ। सो दैट इज़ नथिंग बट फॉर टुडेज क्लास। So if you are liking this video, share with your friends as well, okay. So that is for our today's class guys. Thank you.